یہ جو آج کل مردانہ قوت کے نام پہ ٹوبی ڈرامے ہو رہے ہیں نا، جوان آدمی میں کوئی کمزوری نہیں ہوتی، جب ہوتی ہے تو پھر ہر چیز ہی کمزور ہوتی ہے، ایک ساتھ ہی پوری باڈی کمزور ہوتی ہے انسان کی۔ اس لیے یہ ٹوٹکے موٹکے اور یہ اوٹ پٹانگ چیزیں کھانے کی ضرورت بولو نہیں ہے کہ جی یہ کھا کے پتہ نہیں تو 8 شادیوں کی طاقت پیدا ہو جائے گی، 16 شادیوں کی طاقت، بکواس ہے، سب فضول باتیں ہیں۔ جب تک چل پھر رہے ہو، بول رہے ہو، آنکھیں صحیح ہیں، کان صحیح ہیں، سونگنے کی طاقت صحیح ہے، ہضم کرنے کی طاقت ہے، تو ساری طاقتیں ٹھیک ہیں۔ جب کمزور ہو گئے تو ایک ساتھ ہی ہو گئے سارے، سب کچھ، ساری کمزوریاں ایک ساتھ ہی پیدا ہوتی ہیں۔ تو جب تک باقی باڈی ٹھیک ہے تو باقی بھی ٹھیک ہے۔ الگ سے پتہ نہیں کیا گیا کہ لے کے نسخے کھا رہے ہوتے ہیں، دوائیں کھا کے اپنے آپ کا بیڑا غرق کر رہے ہوتے ہیں۔ اس میں وہم زیادہ ہے لوگوں کو، اور اللہ نے ہر مسلمان میں 4 کی طاقت رکھی ہوئی ہے معذرت کے ساتھ۔ اس کے لیے کوئی بہت زیادہ ایکسٹرا کوئی صحت کی ضرورت نہیں ہے۔ مرد کو اللہ نے عورت سے زیادہ پاورفل بنایا اس معاملے میں، تو مرد ہی کیا ہے جس میں پاور عورت ہی کے برابر ہو۔ ایک عورت کے لیے ایک مرد کافی ہے، تو ایک مرد کے لیے بھی ایک عورت کافی ہے، تو دونوں میں کوئی فرق ہوا پھر؟ تو آدمی کس بات کا ہے بھائی تو؟ باقی کرے نہ کرے وہ آپ کا ہیڈیک ہے، وہ میں الگ ٹاپک ہے، وہ تو میں پھر سوسائٹی کی جو ضرورت ہے، معاشرے کی ضرورت ہے، بیوہ طلاق یافتہ، وہ تو میں اس پہ بات کرتا رہتا ہوں۔ لیکن یہ جو آج کل ہے نا کہ کمزوری، یہ ایسے نہیں ہے ایسے جیسے لوگوں نے سمجھ لیا ہے، سب صحت مند ہی ہیں۔ ہاں کوئی خدا نخواستہ کوئی شوگر کا مریض ہے، کوئی ایکسٹرا کوئی بیماری ہے اس میں، تو ایک الگ بات ہے۔ جب تک آپ نارمل ہیں تو سب کچھ نارمل ہے۔ اس کے لیے حکیموں کے پاس، جو جعلی حکیم ہوتے ہیں نا، ان کے پاس مت جایا کرو، وہ بیڑا غرق کر دیں گے۔ جو پراٹھے ہضم کر رہے ہیں نا، روٹی ہضم کر رہا ہے، گوشت ہضم کر رہا ہے، تو اس کا مطلب صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ باقی نفسیاتی مسائل ہوتے ہیں لوگوں کے ساتھ، اس کو وہ، اب ایک آدمی کو غلط کاریوں کی عادت پڑ جائے، لوط علیہ السلام کی قوم کو لڑکوں سے بدفعلی کی عادت پڑ گئی تھی، تو ان کی عورت میں رغبت ختم ہو گئی، بیوی میں رغبت ختم ہو گئی، تو یہ جسمانی بیماری نہیں تھی، یہ روحانی بیماری تھی۔ اس کا علاج کوئی دوائیں نہیں ہے، اس کا علاج ہے کہ جو گندگی تم نے عادت ڈالی ہے اس عادت کو چھوڑو، تو پھر اللہ حلال میں رغبت پیدا کرے گا۔ تو جو زانی لوگ ہیں، زنا کرنے والے، بدکاریاں کرنے والے، غیر عورتوں میں دلچسپی لینے والے، ان کی گھریلو لائف بہت خراب ہو جاتی ہے۔ تو وہ جسمانی بیماری نہیں ہے، وہ مینٹلی ایک ڈسٹرب ہوتے ہیں، وہ ان کو روز آنا کچھ نیا چاہیے، عیاشی ان کی مزاج کا حصہ بن جاتی ہے۔ جیسے جو روز مرغے کھائے گا تو دال اچھی لگے گی پھر اسے، تو بیلنس ہے نا، کبھی مرغا کھا لیا کبھی دال کھا لی۔ اب آپ روزانہ ہی مرغے پھوڑتے رہو گے تو مر جاؤ گے آپ۔ تو حلال میں اللہ نے اعتدال رکھا ہے، حرام میں اعتدال نہیں ہوتا۔ جو حرام کی طرف جاتے ہیں نا، زنا کرتے ہیں، تو وہاں سے تو بور ہوتے ہیں، لیکن گھریلو لائف ان کی برباد۔ بے حیائی کا سب سے بڑا اثر یہ پڑتا ہے کہ اس کی اپنی جو بیوی بچوں کی زندگی ہے وہ تباہ و برباد ہوتی ہے۔ اور کتنے برے اثرات بچوں کو جب پتہ چلتا ہے ہمارا باپ ایسا ہے، بچوں کے دل میں باپ کی عظمت نہیں رہتی ہے۔ آپ کہتے ہیں نہ رہے عظمت تو کیا ہوگا بھائی، آگے آپ کا بڑھاپا بھی آ رہا ہے، ابھی اولاد کو آپ کی ضرورت ہے، کل آپ کو اولاد کی ضرورت ہے، اور بہت جلد ہے، بڑھاپا کوئی ٹائم نہیں لگتا، کراچی میں تو اور جلدی آتا ہے۔ جو غذائیں کھا رہے ہیں نا، یہ جو حدیث میں آتا ہے نا، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھو، تو یہ صحابہ کے بڑھاپے کی بات ہو رہی ہے۔ ہم لوگ کا جو ہے بہت جلدی آ جاتا ہے، ہمیں تو ابھی سے غنیمت سمجھنا شروع کر دینا چاہیے۔ دیکھو 63 سال کی عمر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چند بال سفید تھے، چند بال، صحابہ کہتے ہیں گنے جا سکتے تھے۔ یہ صحتیں تھیں اس زمانے میں۔ آج 40 سال کے بعد آدھا سر سفید ہو جاتا ہے، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ 40 سال کے بعد ہی یہاں درد وہاں درد۔ آج میں صبح اٹھاؤں تو میری گردن ادھر کو مڑ رہی تھی، ادھر مڑ نہیں رہی تھی، بڑی مشکل سے موڑی ہے میں نے۔ تھوڑا سا تکیہ آڑا ترچھا ہو جائے تو صبح بندہ بھی آڑا ترچھا ہوتا ہے۔ یہ تو صحتیں آج کل۔ اکثر لوگ صبح اٹھے ہوئے ہوتے ہیں نا، یار ادھر پین ہو رہا ہے، ڈاکٹر کہتے ہیں بھائی تکیہ اونچا کر دیا تھا آپ نے۔ تو پہلے بھی لوگ آڑے ترچھے سوتے تھے، اینٹوں پہ سو جاتے تھے، اب تھوڑی سی آڑے ترچھے ہوئے اور آپ کی باڈی کا فرما کیا ہو گیا، وہ بھی اسی حساب، اس کو سیٹ کرنے میں کتنی الٹی، یعنی اب اس کروٹ پہ سو آپ اسی اسٹائل میں تاکہ بیلنس برابر ہو جائے۔ تو اس زمانے میں اتنی زبردست صحتیں تھیں لوگوں کی، اس زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ غنیمت سمجھو، اللہ نے جو جوانی دی ہے بہت جلد بڑھاپا آنے والے۔ صحابہ میں ہم دیکھتے ہیں 100 سال کی عمریں ہوئی ہیں، 90 سال کی عمریں ہوئی ہیں، اور جو انتقال جن کا ہوا وہ بھی اکثر کا میدان جنگ میں شہید ہو کے ہوا ہے، اکثر میدان جنگ میں شہید ہوئے ہیں۔ تو ہمارا تو بہت قریب ہے بھائی، ابھی بستر پہ لیٹنے کا ٹائم ہمارا زیادہ دور نہیں ہے۔ ہمارے میں ہم سب، صرف میں نہیں آپ بھی، آپ سمجھ رہے ہیں کہ شاید اپنے بارے میں مفتی صاحب رپورٹ پیش کر رہے ہیں، سب کی رپورٹیں ایسے ہی ہیں۔ تو یہ اللہ کی نعمت ہے کہ چند دن اللہ نے جوانی کے دے دیے، چل پھر رہے ہیں، 4 شادیوں کی باتیں کر رہے ہیں، کریں نہ کریں باتیں تو کر رہے ہیں نا۔ بڑھاپے میں تو وہ باتیں بھی زہر لگتی ہیں کہ کیا بات کر رہا ہے مفتی مولوی صاحب، کچھ اور نہیں آتا تمہیں۔ اور تیسری چیز نبی نے فرمایا فراغ کا قبل شغلق، جیسے جیسے آپ کی عمر بڑھے گی نا، آپ کی مشغولیت کم ہونے کے بجائے بڑھے گی۔ جتنا ویلا جوانی میں ہوتا ہے نا، پنجابی میں ویلا ہی کہتے ہیں نا،
उतना वेला बुढ़ापे में नहीं होता, मसरूफियत बढ़ती है। लोग हमें कहते हैं पहले तो आप बड़े आराम से मिल लिया करते थे, आजकल शार्ट ही रहते हैं मार्केट से। भाई पहले मसरूफियत कम थी, अब क्या है, पुराने दोस्त है ना। तो ये तो इंसान की जैसे जैसे आगे जाएगा मसरूफियत और काम बढ़ेंगे। आपको बहुत से लोग नजर आएंगे, हाँ बीमारी में मसरूफियत खत्म, वो तो फिर बीमारी की फिक्र ही एक मसरूफियत बन जाती है कि इसको ठीक कैसे करूं मैं। और आपने फरमाया गिना का कबला फक्रिक, आज अल्लाह ने जो माली वसाइल दिए हैं ऐन मुमकिन है कल ये ना रहे आपके पास। हमने बड़े बड़े मालदारों को धड़ाम से नीचे आते देखा है। देखो दो तरह की गाइडेंस मिल रही है, एक मजहबी गाइडेंस है जो लोगों को गाइड कर रहे हैं, एक वो गाइडेंस है जिसमें मजहब नहीं है। मोटिवेशनल स्पीकर जो आजकल कर रहे होते हैं, खूब अच्छी तरह एक बात दिमाग में बिठा लो, ये जो मोटिवेशनल स्पीकर्स आपको गाइड कर रहे हैं ना, जो मजहब को नहीं मानते उनकी बात कर रहा हूँ। मैं नहीं कह रहा इनकी सारी बातें गलत होती हैं, इनकी सारी बातें गलत, मैं ये नहीं कह रहा, बहुत सी बातें अच्छी करते हैं और लोगों को जरूरत होती है, लेकिन इनकी बेस नहीं है। इनको सक्सेस का मतलब ही नहीं पता है, कामयाबी का मतलब ही नहीं पता है। जिस आदमी को कामयाबी की डेफिनेशन ही मालूम ना हो, आपको कैसे कामयाब बना सकता है। देखो जिसको सेहत की तारीफ मालूम ना हो, वो डॉक्टर सेहत दे सकता है आपको। आप किसी डॉक्टर के पास गए, आपने कहा मैं सेहतमंद बनना चाहता हूँ, मेरा हदफ है, आप डॉक्टर हैं, आप मुझे सेहतमंद बनाएं। वो डॉक्टर ये समझता था कि पढ़ा लिखा नहीं था, वो ये समझता था कि जाली डिग्री थी उसके पास, वो ये समझता था कि सेहतमंद वो होता है जो मोटा बहुत होता है। तो उसने कहा यार आप तो 50 किलो के हैं, अभी एक 150 किलो के एक साहब आए थे मेरे पास, वो सेहतमंद थे, मोटे थे माशाल्लाह, ऐसे मेज उठा के नीचे मार देते, पटक देते। तो ठीक है, मैं अब आपको सेहतमंद बनाने की फिक्र कर देता हूँ, अब आप इतने पराठे, इतने बर्गर, इतनी बिरयानियां रोजाना फोड़ा करें और हजम के लिए ये कारमीना ले जाएं या कुछ भी चीज ले जाएं। और आपने जब मोटे होना शुरू हुए और तोंद निकल रही है और माशाल्लाह जानदार, तो आप कह रहे हो यार ये डॉक्टर है, इसको सुनना चाहिए, ये है, देखो मैं ऐसा बारीक सा था और इसने मुझे क्या बना दिया, ये जबरदस्त, लंबाई चौड़ाई बराबर। अब लोग मुझे कहेंगे वसीम स्क्वायर, समझ रहे हैं ना। तो अक्लमंद कहेगा भाई उससे तो तू पहले 50 किलो का अच्छा था। आप कहेंगे नहीं यार मैं इतना सेहतमंद हो गया, देखो मैं 4 गुना बढ़ गया हूं मैं। हम कहेंगे अभी जब थोड़े दिनों में तुझे बीमारियां आएंगी ना, पहले तो चल फिर लेता था, अभी तू सांस फूलेगा तेरा, तुझे शुगर तुझ पे हमला करेगी, ब्लड प्रेशर का मरीज बनेगा, थोड़े दिनों में तेरे गुर्दे डैमेज हो जाएंगे, फिर शुगर बढ़ने से तेरी आंखें जाया होने का खतरा है, ये होने का खतरा, वो होने का खतरा, और वो खतरात आना शुरू। तो उसको पता चलेगा भाई मैं जिस डॉक्टर के पास गया था उसने सेहत का लेबल लगा के मेरा बेड़ा गर्क कर दिया। याद रखो कामयाबी की डेफिनेशन सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल बताते हैं कामयाबी क्या है, ये किसी के पास है ही नहीं। जब है ही नहीं तो तुम्हें कामयाबी की तरफ लेके कैसे जाएगा। आप समझ रहे हो ये इसकी इज्जत और शोहरत, इट इज कामयाबी, ये कामयाबी का धोखा है, ये कामयाबी नहीं है। शायर ने कहा है ना, रंग रलियों पे जमाने की न जाना ए दिल, ये खिजा है जो अंदाज़े बहार आई है। ये कामयाबी थोड़ी है, कामयाबी सिर्फ 2 लफ्जों में, जिसका रब उससे राजी है, खुदा राजी है, बस। क्योंकि कामयाबी की खजाने किसके हाथ में है, अल्लाह के हाथ में। तो रब को तो ये अपनी डिक्शनरी में लाते ही नहीं है ना। मुझे एक बात बताओ, आप किसी स्टेट में किसी रियासत में हो और रियासत आपको जज भी कर रही है, हुकूमत है आपको देख रही है क्या कर रहे हो, आप अपनी जिंदगी गुजारने का वो तरीका इख्तियार करते हो जिसमें जगह जगह गवर्नमेंट के लॉज को आप तोड़ रहे हो, कानून को तोड़ रहे हो, गवर्नमेंट आपको कुछ नहीं कह रही। क्यों? उसका एक तरीका है कि भाई एक प्रॉपर तरीके से सजा मिलती है उसमें। एक तरीका तो ये ना, आपने सिग्नल तोड़ा और फौरन ट्रैफिक पुलिस वाले ने पकड़ लिया। कुछ जराइम ऐसे होते हैं जो बड़े जराइम होते हैं, एजेंसीज आपको छोड़ देती हैं कि अभी देखो इसके नेटवर्क पकड़ो पूरा, है भाई ऐसे ही होता है ना, अभी इसको जरा बातें करने दो, और पूरा नेटवर्क जो है ना पकड़ के एक ही दफा में तबीयत से चित्रौल लगेंगे। अल्लाह ताला कुरान में बार बार कहते हैं कि मैंने बनाया है, ला तहसबन्नल्लाह गाफिलन अम्मा यामलु ज़ालिमून, जो जालिम लोग जो कर रहे हैं ना, मुझे गाफिल नहीं समझना इससे। जालिम लोग, जालिम से मुराद सिर्फ इंसानों पे जुल्म करने वाला नहीं, जो खुदा के साथ जुल्म करे, जो खुदा की माने ही नहीं। ये मोटिवेशनल स्पीकर जिना के खिलाफ क्यों नहीं बोलते? ये क्यों नहीं कहते कि गर्लफ्रेंड रखना गंदी हरकत है, भंगी चमारों वाला काम है, ये क्यों नहीं बोलते? ये क्यों? ये खुदा का मसला, ये इनका हेडिक थोड़ी है। जिना को कौन नापसंद करता है, रियासत या खुदा? बोलो ना क्या हो गया मेरे भाई? ये क्यों नहीं बोलते कि जिना मत करो, जो जिना से बचता है वो कामयाब है, जो जिना करता है वो भंगी चमारों वाली हरकत कर रहा है। गधे घोड़े जिना करते हैं या निकाह करते हैं? बोलो ना, वो निकाह थोड़ी करते हैं। गधे घोड़ों वाली जिंदगी है ये। गर्लफ्रेंड टिश्यू पेपर की तरह औरत को इस्तेमाल किया और बाद में छोड़ दिया। आप कामयाब है दुनिया की नजर में, आपको पैसा मिल गया, इज्जत मिल गई, आप स्टेज पे खड़े होकर लोगों को गाइड कर रहे हैं, लोग कह रहे हैं भाई काश हम भी इस जगह होते। ये भूल गए कि जिसने बनाया है, या तो ये कहो किसी ने नहीं बनाया,
ऐ वही बस डार्विन वार्वन जो दुम बंदर की और वो सब मार्केट से फिर दुम शॉर्ट हुई, बंदर यही, वो बंदर कह रहा हूँ, डार्विन यही कहता है ना कि दुम थी फिर मार्केट से दुम क्या हो गई, शॉर्ट हो गई, ना दुम दे रहे हैं ना दुम के पैसे दे रहे हैं। तो या तो इस नजरिए के आप हामिल हो जाएं कि बस ऐसे ही ये सब इत्तेफाक से है, तो हम तो नहीं मानते भाई, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, खुद बखुद ये सारा निजाम नहीं चल सकता। और अगर कोई कायनात को बनाने वाला है तो सबसे ज्यादा वैल्यू आपको उस क्रिएटर को देनी पड़ेगी जिसने इस कायनात को और इंसान को बनाया। अगर आप अपनी लाइफ से, अपनी जिंदगी से उस क्रिएटर को निकालोगे, आप कामयाबी के फजूल किस्म के दावे करोगे। देखो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये जो दिल है ना, ये अल्लाह की 2 उंगलियों के दरमियान में है, जब चाहता है जिधर को चाहता है पलट देता है। सुकून किसके हाथ में है? खुदा के हाथ में। आप जिना में सुकून तलाश कर रहे हो, मैं सुनता हूँ बाज दफा मोटिवेशन स्पीकर की, आजकल तो आ जाते हैं ना सामने, कुछ भी देख रहे हो, 2-2 मिनट की तकरीरें आ रही हो, कहीं इनकी डिक्शनरी में खुदा है ही नहीं। खुदा को राजी करना ये इनकी लुगत में ही नहीं है, तो कामयाब कैसे हो गए भाई? तुम एक स्टेट में रहते हो, रियासत में रहते हो, हुकूमत के कानून को फॉलो नहीं कर रहे, या तो बच जाओगे अगर हुकूमत को पता नहीं है, हुकूमत को पता है तो फिर भी बच जाओगे अगर हुकूमत में अदलो इंसाफ नहीं है। लेकिन अगर हुकूमत में अदलो इंसाफ भी है, हुकूमत की नॉलेज में भी है कि ये जुर्म मुजरिम है, तो फिर तुम जितना कामयाब हो रहे हो ना, समझो उतना ही ज्यादा नाकाम, क्योंकि फिर ये कामयाबी ढील की अलामत है। जैसे खुफिया एजेंसियां बड़े बड़े मुजरिम को छोड़ देती हैं, छोटे छोटे को चित्रौल लगा के माफ कर देती हैं। जो मुल्क की रियासत के बागी लोग होते हैं ना, उनको वक्ती तौर पर पनपने दिया जाता है। तभी तो मैं यूनिवर्सिटियों में कह रहा हूं, आजकल जो मुल्क की बगावत की यूनिवर्सिटियों में तहरीकें चल रही हैं, उन नौजवानों से कह रहा हूं अपनी जानों पे रहम करो। ये आजकल बहुत बगावत की बातें यूनिवर्सिटियों में चल रही हैं कि स्टेट के खिलाफ निजाम को पलटना है। निजाम को पलटने का वो तरीका इख्तियार करो जो सुटेबल है। हम निजाम की तब्दीली की कोशिश को गलत नहीं कहते, कोशिश वो करो जो ग्राउंड रियलिटी से मैच करती हो। मुसल्ला बगावत की बातें अगर आपने यूनिवर्सिटियों में शुरू कर दी तो ये जो इस तरह की ट्रैक पे आपको चला रहे हैं ना, खुद भी मरेंगे, आपको भी पिटवाएंगे ये। और जब आप जेलों में चमड़ियां उधेड़ी जाएंगी ना, फिर आप इनसे ये बहुत होता रहा है माजी में। तो लड़कों की सलाहियतें खराब कर रहे हैं, बर्बाद हो रही हैं सलाहियतें। जिस एजुकेशन में आप लगे हो उसमें तरक्की करो। आप ब्यूरोक्रेसी में जाओ, आप फौज में जाओ। अगर बुरे लोग हैं फौज में तो अच्छे भी तो जा सकते हैं, अदलिया में बुरे लोग हैं तो अच्छे भी तो जा सकते हैं। इस तरह से इनकलाब की कोशिश करो। हर थोड़े दिन में यूनिवर्सिटी में कोई भी बगावत के नाम पे लड़कों को, यार ये खलीफा कहाँ है, खलीफा हमारा तो कोई खलीफा ही नहीं है, तो खलीफा बनाओ। एजेंसियों को सब पता होता है कौन खलीफा बना रहा है, कौन बन रहा है। और ये कई सालों से तहरीकें मुल्क में चल रही, कई साल। इसमें होता ये है कि एजेंसियां ट्रेस कर रही होती हैं कि यार इनका यहाँ इजलास होता है, यहाँ ये बातें करते हैं, यहाँ तो ठीक है, इतने लोग होने तो इतने हम अफोर्ड कर सकते हैं, इससे थोड़ा ज्यादा होंगे तो पुराने वालों को उठाते हैं, फिर वो मारते हैं, पीट, वो तो फिर उनकी तो कोई हुदूद ही नहीं होती। फिर तो हम बेहतर नहीं है कि वो बात पहले नौजवानों को बता दें, जो भुगतने के बाद, तजर्बों के बाद सीखोगे। पहले ही होशियार बन जाओ। कोई भी रियासत अपने मुल्क में, अगर वो रियासत स्ट्रांग है, वो बगावत नहीं करने देती। अगर करने दे रही है इसका मतलब वो पूरा नेटवर्क पकड़ने के चक्कर में है। इल्ला ये कि मुल्क में कोई मजबूत हुकूमत ही नहीं है, जैसे अफगानिस्तान में, वहां तो एक रियासत ही नहीं थी ना, वहां की आवाम उठी, उन्होंने पलट दिया सारा निजाम और अल्हम्दुलिल्लाह एक इस्लामी रियासत कायम की वहां पे। वहां तो कोई स्टेबल गवर्नमेंट ही नहीं थी। तो खैर ये बात बीच में कहां से कहां आ गई। आज नौजवान दीन पे आते कम है, आते हैं तो फिर उनकी सलाहियतों को ऐसी जगह जाया किया जाता है जहां उनकी मेहनत बहुत है, उसका रिजल्ट कुछ भी नहीं है, जीरो है। फिर लोग हमसे कहते हैं कि आप इनकलाब की बातें क्यों नहीं करते। बातें वो करो जो कर सकते हो, अफोर्ड कर सकते हो। खाली बातें करने पर गवर्नमेंट की तरफ से कोई पाबंदी नहीं है। कभी छांव में बैठो तो हम कुछ और बहुत सारी बातें लेके बैठे हुए आपको बताएंगे, कभी छांव में आओ, कुछ बातें मिंबर पे बताने की नहीं होती हैं। ये सारी गोलियां हमने भुगते हुए हैं, ये जो है ना, ये सारे ये सब कंचे खेले हुए हमने। ऐसे बेवकूफ नहीं है कि एकदम से मिंबर पे आके बैठ गए, ये सब चीजों से हम गुजरे हुए हैं। तो मुल्क में इनकलाब आना चाहिए, लेकिन वो इनकलाब जो इनकलाब हो, ऐसा ना हो इनकलाब के लेवल पे जो थोड़ा बहुत पावर है दीनदारों के पास, कुछ थोड़े से दाढ़ी वाले बाकी रह गए, वो भी मार्केट से शॉर्ट हो जाए। मिस्र में ये कुछ हुआ है माजी में, आप देखें, वहां फिर दाढ़ियों पर पाबंदी लगा दी गवर्नमेंट ने कि यार ये यानी मजहब का, और जो थोड़ा बहुत मजहब बचा था उसका भी सत्यानाश कर दिया। तो स्टेट की रिट को चैलेंज मत करो, स्टेट के इस तरह से अगेंस्ट मत जाओ कि आप जो मर्जी करो। हम ये कह रहे हैं तलवार ना उठाओ, मुसल्ला बगावत रियासत के खिलाफ ना करो, बाकी जो मर्जी करो आप, बल्कि वो तो करना चाहिए। आराम से हाथ पे हाथ रख के बैठना ठीक नहीं है। खैर
असल टॉपिक की तरफ आता हूं। तो मैं यस कर रहा था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बुढ़ापे जवानी को गनीमत समझो। किससे पहले भाई? बुढ़ापे से। और अल्लाह ने माली असबाब दिए, हो सकता है ये हमेशा न रहे। लोगों के कारोबार कैसे धड़ाम से नीचे आते हैं, तो आज अल्लाह ने वसअत दी, उसको गनीमत समझो और जिंदगी को गनीमत समझो मौत से पहले। अब गनीमत समझने का मतलब क्या है? सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स यही बात करते हैं कि अपने टाइम को आप क्या करें, सेव करें, और टाइम वेस्टिंग बुरी चीज है और वगैरह वगैरह। लेकिन एक बड़ा टेक्निकल फॉल्ट इनकी दावत में ये होता है कि ये टाइम वेस्टिंग की डेफिनेशन अल्लाह से नहीं पूछते कि अल्लाह की नजर में वक्त जाया करना किसे कहते हैं और इंसानों की नजर में वक्त जाया करना किसे कहते हैं। एक आदमी जिना कर रहा है टेंशन से बचने के लिए, ये टाइम वेस्ट कर रहा है अल्लाह की नजर में। मोटिवेशनल जो मजहब को नहीं मानते उनकी नजर में ये टाइम वेस्टिंग नहीं बल्कि रिलैक्स हो रहा है। तो आप जब किसी रियासत में हो, खुदा का कानून है ना, तो आप कुछ भी कर लो, आप कामयाब उसी सूरत में हो खुदा राजी है आपसे। कितना आसान कर दिया ना इस्लाम ने, है भाई। कामयाब कौन है भाई? जिसका अल्लाह राजी है, खत्म। नाकाम कौन है? जिसका अल्लाह राजी नहीं है। अब एक हदफ बनाना आसान हो गया कि नहीं हो गया? और जो काफिर है ना, ये कलाबाजियां खाते रहते हैं, सारी जिंदगी ये सोचते रहते हैं कि हम क्यों हैं। आपने देखा होगा अक्सर इनकी जो डिबेट होती है ना, उसमें ये बहस उठाई जाती है, हम हैं क्यों, हमारी मंजिल क्या है। तो इस पे इनकी बहस होती है। अब आप बताओ, ये बहस होती है इत्तिफाक राय से खत्म होती है, ये इख्तलाफ बाकी रहता है, इख्तलाफ बाकी रहता है। तो जब ये आपस में ये तय नहीं कर पाए कि हमारा हदफ क्या है, तो हमें लेके कैसे जाएंगे उसकी तरफ? आप ट्रेन में बैठ गए हो, पता ही नहीं चल रहा कि जाना किधर है। एक आदमी कह रहा है पेशावर चलते हैं, दूसरा कह रहा है नहीं जी मुल्तान चलते हैं, तीसरा कह रहा है नहीं जी लाहौर चलते हैं, चौथा कह रहा है खानेवाल चलते हैं, पांचवा कह रहा है सरगोदा चलते हैं, कह रहा है नहीं कोयटा चलते हैं। और अभी इख्तलाफ हल नहीं हुआ और चल पड़े, तो पता नहीं कहाँ जाओगे मेरे भाई, ना कोयटा जाओगे कुछ पता नहीं कहाँ जाओगे। मुसलमान का मसला अल्लाह ने 2 मिनट में हल कर दिया कि तुम्हें पैदा क्यों किया भाई? अल्लाह को राजी करने के। जो काम अल्लाह कह रहे कर लो, जिससे रोक रहे रुक जाओ बस। और 3 दर्जात बता दिए कि देखो 3 किस्म के लोग होते हैं मार्केट में, 3 किस्म की पब्लिक पाई जाती है। एक है अस्हाबुल यमीन, यानी कामयाबी के भी 3 दर्जात है ना। एक तो वो है जो नाकाम लोग हैं, एक वो है जो कामयाब है, एक वो है जो कामयाबी में भी कामिल हैं। जैसे होते हैं ना, जो हम जिसे कहते हैं कि ए कैटेगरी के लोग और कुछ बी कैटेगरी के होते हैं, कुछ होते हैं सी। हमने जब मैट्रिक किया तो ABCDE पता नहीं कौन कौन से ग्रेड थे, अब पता नहीं वो सिस्टम है या नहीं है। तो F से भी पास हो रहे होते थे लोग। हुकूमत ने कोशिश की भी थी कि जिस हद तक पास हो सकते हो ना, सारी ABCD इसी पे खत्म कर दो ताकि फेल कोई ना हो। फिर भी बहुत से दबा के फेल होते थे। हालांकि इम्तिहानों में माशाल्लाह बुक्स सामने रखी हुई होती थी, नकल ही नहीं करनी आ रही होती थी लड़कों को। ये तो हमारा माशाल्लाह एजुकेशन का अभी भी यही हाल है। इसी वजह से मैं कहता हूँ लड़कों से, आप 9th क्लास कौन सी क्लास में नहीं पढ़ते? आप पढ़ते कहाँ हैं? नहीं पढ़ते होते ना। तो क्या बात कर रहा था यार, दिमाग इधर उधर बहुत घूमता है। नहीं आखिरी जो बात थी, अबे नहीं यार, हाँ 3 तरह के लोग होते हैं ना। एक तो वो होते हैं, वो ABC से मुझे याद आया ना, जो C कैटेगरी के लोग हैं, नाकाम हैं। और एक वो हैं जो B कैटेगरी के हैं, कामयाब हैं। और एक वो है जो A है। एक A कैटेगरी जो कामयाबी के भी सबसे आला मकाम पर है। अल्लाह मियां ने बता दिया भाई, कुछ लोग ऐसे हैं जो गुनाहों में पड़े हुए हैं, खुदा ने कह दिया ये मत करो, वो फिर भी कर रहे हैं। आपकी जिंदगी अगर ऐसे गुजर जाए ना, आप सिर्फ फराइज और वाजिबात पूरे कर लें और कुछ भी ना करें, तो अल्लाह की नजर में आप कामयाब हैं। बस जिस चीज को अल्लाह ने कह दिया तुम पे फर्ज है कर लो, जिस चीज को कह दिया कि नहीं करो उससे बच गए। बस ये है पहला स्टेप कामयाबी। आखिरत के अजाब से बच जाएंगे, दुनिया में भी अल्लाह पाकीज़ा जिंदगी देगा, अल्लाह का वादा है। फलानुहय्यन्नहु हयातन तय्यिबा। तय्यिबा का मतलब सिर्फ पाकीज़ा नहीं, अट्रैक्टिव। आपको अपनी जिंदगी में सुकून महसूस होगा, मजे की जिंदगी गुजरेगी। सिर्फ इतना कर लो। और जिन चीजों से बचने का हुक्म दिया ना, उसमें भी अल्लाह कहता है जो बड़े बड़े गुनाह हैं उनको छोड़ दो, छोटे मोटे माफ कर दूंगा मैं। और आसान कर दिया, लो भाई, इन तज्तनिबू कबाइर मा तुनहौना अन्हु नुकफ्फिर अन्कुम सय्यातिकुम। अगर तुम बड़े कबीरा गुनाहों से बचोगे, छोटी मोटी खताएं मिटा दूंगा। नुकफ्फिर ऐसे जैसे रबड़ लेके नहीं मिटाई जाती, वो मिट जाती है ना छोटी चीज। गुनाहों के पहाड़ है तो वो नहीं मिटते, वो तौबा से माफ होंगे।